بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ نماز میں یا صلاۃ میں جو ہم رخ کرتے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف، اس کے بارے میں میں تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمت جو رخ ہے کعبہ کی طرف، یہ کس نے متعین کیا؟ سب سے پہلے نمازوں کی فرضیت تو قرآن میں واضح ہے، سب سے زیادہ مطلب قرآن صلاۃ کا ذکر تو بہت دفعہ آیا ہے قرآن پاک میں، کو 700 دفعہ، کتنی دفعہ، بہت زیادہ ذکر ہے صلاۃ کا ذکر، صلاۃ قائم کریں۔ نماز ہم نے اس کا ترجمہ نماز کر لیا، یہ نماز فارسی کا لفظ ہے۔ اہل فارس کا بہت اثر ہے ہمارے اس دین پر، جو اس وقت فارس تھا، اب تو وہ مسلمان ہیں، ایران ہے، شیعہ ہیں، لیکن مسلمان ہیں، وہ اہل فارس کا بہت اثر ہے۔ ہم نماز کہتے ہیں، نماز فارسی کا لفظ ہے، اور یہ نماز فارسی کا لفظ ہے، یہ وہ جو اس وقت وہ اپنے خداؤں کو، جن کو وہ سمجھتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے جو وہ عمل کرتے تھے، اس کا نام نماز تھا۔ ہم نے اپنی صلاۃ کا ترجمہ بھی نماز کر لیا، اور اس سے یہ جہاں بھی ہم صلاۃ کا قرآن میں ذکر آتا ہے تو اس سے ہم یہ پنجگانہ نماز ہی لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی پنجگانہ نماز کا مطلب ہی اس سے ہو۔ اس سے میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے۔ اس سے مراد دین بھی ہے، مکمل دین کا متبادل کے نام کے طور پر صلاۃ کا لفظ آیا۔ یہ میں اس کی دلیل کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ یہ سورہ ہود کی 85 نمبر آیت، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جب حضرت شعیب سے کہتی ہے، اے شعیب، کیا تیری صلاۃ یہ کہتی ہے کہ ہم بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، اور جو کچھ ہم اپنی محنت سے خون پسینے کی کماتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، کیا وہ ہم اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتے؟ تو اگر ایسا ہے پھر تو بڑا سیانہ ہے۔ تنزیہ بولے پھر تو بڑا سیانہ بندہ ہے کہ ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنی محنت سے کمائی سے پیسے کمائیں اور اپنی مرضی سے خرچ بھی نہ کر سکیں، اور ساتھ ہی پہلے بتوں کی پوجا چھوڑ دیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ صلاۃ کرتی ہے، یہ صلاۃ تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ سب نبیوں کا دین تو ایک ہی چلا رہا ہے، سب کے ہاں صلاۃ تھی، ہمارے ہاں بھی صلاۃ ہے۔ میرا موضوع نہیں، میں یہ جو بات تھوڑی سی جو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اصل میں بات تو ساری ہوتی ہے، اس میں ارد گرد سے باتیں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن میرا اصل موضوع جو ہے وہ ہے کہ نماز کی سمت کس نے متعین کی۔ ایک بات، دوسری بات مجھے اس پر بے حد افسوس اور دکھ افسوس ہوتا ہے کہ قرآن کو ہم صحیح معنی میں سمجھتے کون؟ جو بات بالکل دو ٹوک ہے، واضح ہے، کسی ترجمے میں کوئی اختلاف نہیں، کسی مسلک میں کوئی اختلاف نہیں، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، تمام کے تمام اس آیت کا ترجمہ ایک ہی کرتے ہیں اور ایک ہی سمجھتے ہیں، تو پھر اس بات کو مانتے کیوں نہیں؟ یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے اور بڑی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ عرض کر رہا ہوں نماز کی سمت، قبلہ رخ جو ہم ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی نماز قرآن میں فرضیت آ گئی۔ پھر آگے ہم اس کی جو پنجگانہ نماز ہے، اس کے لیے ہم وہ معراج شریف کا واقعہ لیتے ہیں۔ معراج شریف اس وقت ہمیں یہ 5 نمازوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ ملا۔ وہ بھی بڑی عجیب و غریب کہانی ہے کہ آپ جاتے ہیں، پھر آپ 50 نمازیں ملتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام رستے میں مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، پھر وہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، پھر وہ 50 سے یکدم 25 ہو جاتی ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام مل جاتے ہیں، پھر وہ 25 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، پھر آپ جاتے ہیں، پھر وہ 25 سے 5 ہو جاتی ہیں، 5 جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پھر ملتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی زیادہ ہیں، تو پھر وہ آپ نہیں جاتے، آپ کہتے ہیں مجھے اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ کے ہاں کہ میں کہوں یہ 5 نمازیں زیادہ ہیں۔ ساری کہانی کو آپ سوچیں، کیا اس سے چیز ملتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ اتنی نہیں پڑھ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پتہ چلا، اس نے بھی دے دی 50 پڑھو جی، پھر 25 پڑھو،
हैं, फिर 5 पढ़ो, उसको भी नहीं पता था, फिर भी आपको मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि नहीं पढ़ सकेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को सारा इस चीज़ का पता था। इससे वाज़ेह होता है कि ये इसराइली रवायत है, बनी इसराइल ने, यहूदियों ने ये बनाई हुई है, लेकिन नहीं, हम उस पर डटे हुए हैं, उसको गलत नहीं करार दे सकते। फिर मैं वही बात कि बिला रुख नमाजें हो गई 5, 50 से 5 हो गई, कह दिया साथ ये भी सवाब 50 का ही मिलेगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म तब्दील नहीं होता। हुक्म तो तब्दील हो गए, 50 से 5 हो गया, हुक्म तब्दील नहीं हो, सवाब तो बाद की बात है, वो तो बाद में है। ये भी नहीं मानते हैं हम कि एक मानते हैं कि अल्लाह का हुक्म तब्दील नहीं होता, हुक्म तब्दील हो गया, उसको कह दिया सवाब सवाब बराबर है, सवाब तो बाद की बात है। मगर यहाँ कहीं भी नमाज की समत का जिक्र नहीं है। अल्लाह ताला ने नमाज की समत मुकर्रर नहीं फरमाई। 5 नमाजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आ गए। चलें जी आगे, आप आ गए आगे। सिर्फ यही बात बनती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज पढ़ने की जो समत है वो मुकर्रर फरमाई, यही बात बनती है, और तो नहीं कुछ निकलता। काबे की तरफ तो अल्लाह ताला ने तो बिल्कुल नहीं फरमाया, ना उस रवायत से मिलता है, ना ही कुरान से मिलता है। जब शुरू में नमाज जब ये फर्ज जिस तरह वो रवायत कहती है फर्ज हुई है, तो आपने क्या सोचा होगा कि बैतुल मक़दस की तरफ किबला अव्वल जिसे हम कहते हैं उसकी तरफ नमाज मुंह करके नमाज पढ़ना। अब देखिए यहाँ भी हम क्या करते हैं, किबला अव्वल, किबला अव्वल हमने उसको कैसे करार दे दिया, क्यों कर करार दे दिया, जबकि कुरान कहता है इस खाने काबे को किबला कहता है। ये सूरत आले इमरान की आयत नंबर 96 है। बिलाशुबा पहला घर जो मैं तर्जमा उसका मफहूम उसका अर्ज करता हूँ, 96 देख रहे हैं खोल के कुरान पाक की आयत, जिसका तर्जमा दिल चाहता है खोल के देख ले। बिलाशुबा पहला घर जो नौ इंसानी के लिए हुकूमत इलाहिया के का मरकज बनाया गया है वो यही खाना काबा है जो मक्का में है। उर्दू में मक्का कहते हैं, अरबी में मक्का कहते हैं, लेकिन यहाँ आयत में बक्का का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मक्का में है, बरकत वाला, तमाम नौ इंसानी के लिए रहनुमाई का सरचश्मा। वाज़ेह हो गया कि वो इसी शहर में है, यही है खाना काबा। ये कोई कह दे वो भी खाना काबा नहीं, जो मक्का में है। दो टोक कितनी वाज़ेह बात है कि यही खाना काबा है और यही जो मक्का में है, ये है तुम्हारा सबसे पहला किबला अव्वल। मगर हम जिद हैं कि नहीं, किबला अव्वल वो था, वो है, उसको किबला अव्वल मानते हैं। तो आपने वो किबला जब था ही नहीं तो उसको किबला कैसे आपने मानकर उसकी तरफ नमाज पढ़ना शुरू कर दी। फिर मैं अर्ज कर चुका हूं पहले कि वो बैतुल मक़दस अरबी ज़बान का लफ्ज है। यरूशलेम, यरूशलेम उसका पहला नाम था, यरूशलेम अबरानी की ज़बान का, दोनों का मानी एक ही है, बैतुल मक़दस पाक घर। और उसकी तकदीस जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल की वजह से है। हैकल क्या है? आपकी इबादत का कमरा, आपकी इबादत गाह जो थी उसको हैकल कहते हैं यहूदियों के यहाँ। वही हैकल का झगड़ा चला आ रहा है। अब सारी कहानी पर मतलब गौर कर लें, देख लें। फिर कहता हूँ बात लंबी है तो मैं समत की सिर्फ बात कर रहा हूँ। और अगर आप नबी अकरम चलें जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुतय्यन कर ली, सिमत खुद मुतय्यन कर ली, तो क्या उसको खुद ही वो बदल नहीं सकते थे? फिर आपका बार बार आसमान की तरफ देखना और ये आरजू करना कि हम इस किबला को हम ये किबला बनाना चाहते हैं, उस किबला की बजाय जिसे हम अब किबला अव्वल कहते हैं, कि वो उस किबला की तरफ पहले नमाज पढ़ते थे, अब हम ये खाना काबा को किबला बनाना चाहते हैं। तो फिर आपका फिर बार बार आसमान की तरफ देखने का क्या मतलब बनता है? जब आपने खुद फैसला किया पहले एक कि उस किबला को, फिर दिल में आया कि नहीं इस किबला को होना चाहिए, खाना काबा की तरफ किबला होना चाहिए, तो खाना काबा को किबला बना लेते। फिर क्यों बार बार अल्लाह की तरफ या आसमान की तरफ आप देखते थे? क्यों इस चीज के मुतलाशी रहे अल्लाह के सामने कि अल्लाह अब हमें हुक्म दे कि हम उस खाना काबा, उस किबला को छोड़ के इस किबला की तरफ आ जाए, इस किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, जब अल्लाह ने पहले उसको मुतय्यन किया ही नहीं। आपने अपनी आप किया है, यही ज़ाहिर होता है ना, आपने खुद किया है।
अगर आपने अपनी मर्जी से किया था तो अपनी मर्जी से इसको किबला इसे इसकी तरफ मुंह कर लेते। फिर वो हुक्म आना नमाज के दौरान ही, फिर किबला तैन मस्जिद भी बन जाना, फिर इस तरफ मुंह कर लेना, क्या कहानी बनती है मेरे भाइयों। सोचना नहीं, कुछ गौर नहीं करना बात पर। ये सब जो कहानियां चली आ रही हैं इनको कुरान के तनाजुर में आप जरा गौर किया करें, जरा देखा करें, जरा सोचा करें। तो मैं सिर्फ ये सम्मत की बात को उजागर करना चाहता था, बहुत सारी बातें इसमें हो गई, बड़ी लंबी कहानी हमने ये बनाई हुई है। तो बस ये किबला अव्वल की बात भी नहीं मानते। किबला अव्वल कुरान कहता है कि ये खाना काबा है आपका किबला अव्वल, वो किबला है ही नहीं, यहूदियों का भी नहीं किबला। उसकी ठीक है, उनके यहाँ वो उसकी तकदीस है बहुत ज्यादा, वो मुकद्दस है, हैकल है उसके लिए, जिस तरह हमारे लिए ये खाना काबा है उसी तरह मुकद्दस उसको समझते हैं। लेकिन उसकी तरफ ये नमाज का रुख करके मुंह करके नमाज का पढ़ना जो है, ये कहानी, बस मैं ये कहानी आपको सुनाना चाहता था कि इस पर जरा आप गौर करें, आप जरा देखें कि अगर आपने खुद ही उसको मुतय्यन फरमाया था तो बाद में खुद ही मुतय्यन कर लेते, कि जबकि ऐसा नहीं है। पहले कहते हैं, मैंने डॉक्टर सरार साहब की तकरीर भी सुनी थी कि पहले दोनों को किबला मानते थे और इस तरह खड़े होते थे कि ये किबला भी सामने रहता था, वो किबला भी सामने रहता था। अच्छा, ये किबला किस तरह सामने रह सकता है, कितनी साफ बन सकती है कि ये किबला भी सामने हो और वो किबला भी सामने हो। थोड़ी सी ज्योमेट्री के लिहाज से आप एक नुक्ता बनाएं, एक नुक्ता फिर दूसरा नुक्ता आगे लगाएं, तो दोनों की सीध में आप जब खड़े होंगे तो कितने बंदे खड़े हो जाएंगे जब वो नुक्ता अगले वाला भी किबला वो भी सीध में ही रहे। नहीं हो सकता। ये तो हम गुलाई में खड़े होते हैं ना, दायरा है चारों तरफ, जिस तरफ भी खड़े हो जाएं खाना काबा आगे होता है। तो जब इस किसी और को भी साथ लेना हो, उस किबला अव्वल को भी साथ मिलाना हो, तो किस तरह खड़े हो सकते हैं। इतना बड़ा आलिम दीन था डॉक्टर सरार साहब, इतनी बड़ी जमात है उनकी, इतने फॉलोवर हैं उनके, तो ये बात जरा गौर नहीं करते, सोचते नहीं है कि ये पॉसिबल किस तरह है। फिजिकली आप किस तरह खड़े हो सकते हैं कि आपके सामने दोनों किबले दोनों आपके सामने खड़े एक एक लाइन में हो जाएं, तो कितने बंदे इस लाइन में खड़े हो सकते हैं। एक बंदा खड़ा हो सकता है, दो तीन खड़े हो जाएं। आप समझ लें जितनी उसकी लंबाई है खाने काबे की, इसकी लंबाई चौड़ाई आप कर लें, मकाब है, उतने बंदे आप समझने की लाइन बन जाएगी, चार पांच बंदे बन जाएगी लाइन, जो जिनके सामने वो भी नहीं होगा। आप ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो आपको एक बंदा ही खड़ा होगा सिर्फ लाइन में, जिसकी लाइन में वो काबा भी कि किबला अव्वल जो है वो भी सीध में हो और ये भी सीध में हो। तो मेरे भाइयों, ये गौर करने की बात है। बस मैं आपके सामने यही नमाज की सम्मत किस तरह मुतय्यन हुई, फिर आपने इसको क्यों कर तब्दील किया, और फिर क्यों क्यों आसमान की तरफ देखते थे, क्यों नहीं खुद में खुद उसको तब्दील कर लिया। तो बस मैं यही आपके सामने अर्ज करना चाहता था। आप प्लीज जरा गौर किया करें कि किबला अव्वल की तरफ जंग लड़ी जा रही है जब से हम हैं, ये कर रहे हैं, और रमजान शरीफ का आखिरी जुमा यौमुल कुद्स के नाम मनाते हैं, मनाएं। लेकिन किबला अव्वल वो नहीं था, कभी भी नहीं था किबला अव्वल। अल्लाह ताला ने यही फरमाया, कुरान में तो यही फरमाया है। अगर आप कुरान को मानते हैं, सूरत आल इमरान है, आयत नंबर है 96, आप खोल के देख लें, किबला अव्वल यही है। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी। अब पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। आपकी मेहरबानी।